When I was thinking of buying a second house, my initial consideration was to sell my existing property. Then a thought came into my mind. I should rent my house. Why should I sell? And then one more thought came into my mind. I'll do one thing. I'll get a property manager and I will rent my house through him. भाई H1 पे हूँ, कुछ अगर कोर्ट का इशू हुआ, ये इशू हुआ, वो इशू हुआ. What I felt is when I came to USA on H1B visa, all the people have conditioned me with lot of myths on H1B and student visa. However, it is not the case with me anymore, and I hope कि after watching my videos, even you will come out of that zone. In this video, I'll explain you step-by-step process of how to rent your house on H1B or student visa using zero and by paying zero fees. पैसा ही पैसा होगा. Also, I've explained about how the taxes are calculated for the rental income. And also, I'm going to explain you risk involved in renting your house, and also I'm going to explain you how to eliminate those risks. Risks. चलो शुरू करते हैं. नंबर 1, कैन आई रेंट माई हाउस ऑन H1B और स्टूडेंट वीजा? Yes, you can rent your house on H1B and student visa because you are not actively involved in doing some work, and this is considered as a passive income. But you will not believe me, let's go to the website called AVVO Avo. Avo is an online marketplace for legal services. Here are the proof from the few lawyers. एक लॉयर बोलते हैं yes, that is permitted by the visa terms and conditions. और एक लॉयर ये बोलते हैं yes, an H1B visa holder may receive rental income. But look at this comment. You can invest in real estate, but you should have third-party property management company handle all of the activities in renting and managing the property. Exactly. So few lawyers, they like to stay in the comfort zone. They try to tell you कि भाई you get a property manager so that they collaborate with your tenant, and also they will take care of the few maintenance thing about the house, right? मतलब अगर कुछ तो गड़बड़ होता है, they will take care of everything and they will send you a bill. Anything, any maintenance cost occurs in your house, like टेनेंट बोलता है कि ये बराबर नहीं हो रहा है, वो बराबर नहीं हो रहा है, डोंट ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ बाय गोइंग देयर. इंस्टेड हायर अ कॉन्ट्रैक्टर हु विल डू इट फॉर यू, एंड आल्सो आस्क दैट कॉन्ट्रैक्टर टू गिव यू द बिल्स so that you can document that for the future use. This clearly indicates that you are not working, like you are not actively involved in maintaining the house. You have someone to take care of it. और अभी ये जाके लॉयर को पूछेंगे तो आई डोंट थिंक कि he will have any answer, because the thing is there are a lot of gray areas of investing such things. तो USCIS website, which is a government website, they don't have any mention anywhere कि भाई you can do this, you can do that, you can do this. They just say that you cannot actively work with two employers at the same time. All right, number 2, you have to make some decisions. Right? There are two options. Number 1 is you can rent your house by yourself. Number 2 is you can rent it through a property manager. आप अगर number 2 मतलब property manager select करते हो, then you have to pay 10% of gross rental income. मतलब आपका अगर घर 2000 का चढ़ता है रेंट पे, तो you have to pay $200 to the property manager every month. तो आपको अगर ये $200 सेव करने हैं तो ट्राई टू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. और आपको कुछ झंझट नहीं चाहिए तो मैं क्या बोलता हूँ, आप ये वीडियो छोड़ सकते हो एंड डू समथिंग नाइस. लेकिन तो भी आपको अगर लगता है कि भाई एक अवेयरनेस के लिए, एक नॉलेज के लिए अगर वीडियो देखते हैं, प्लीज वॉच इट कंप्लीटली. तो आप मुझे पूछोगे कि भाई केटी मुझे बोल कि व्हाई वी नीड टू पे $200 टू दिस प्रॉपर्टी मैनेजर. बेसिकली दैट पर्सन इज अ मीडिएटर बिटवीन टू पार्टीज, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट. वो आपके सब क्वेश्चंस आंसर करेगा, सब क्वेश्चंस. और अगर टेनेंट को कुछ प्रॉब्लम आता है बीच में, जैसे कि एसी वर्क नहीं हो रहा है, हीट वर्क नहीं हो रहा है, या लाइट नहीं, कुछ ना कुछ तो प्लम्बिंग के इश्यूज है, ही विल कॉन्टैक्ट द प्रॉपर्टी मैनेजर. प्रॉपर्टी मैनेजर इमीडिएटली किधर ना किधर से कॉन्ट्रैक्टर लाएगा और वो फिक्स करके देगा. उसके बाद आपको बिल चिपकाएगा कि भाई केटी उस दिन का वो जो है ना वो तुझे भरना पड़ेगा. लेकिन इफ यू डू इट बाय योरसेल्फ, टेनेंट विल कॉल यू डायरेक्टली सेइंग दैट कि हे केटी, एसी इज नॉट वर्किंग, यू नीड टू फिक्स इट. सो दैट टाइम आई नीड टू डू समथिंग, आई नीड टू फिक्स इट इमीडिएटली. बट आई एज इन मैं नहीं करना, आई हैव टू हायर अ कॉन्ट्रैक्टर. नंबर 3, एस्टिमेशन. आप मुझे अभी पूछोगे कि भाई ठीक है भाई चल, मैं मेरे कहने से आई विल ट्राई टू रेंट द हाउस बाय आवरसेल्फ, बट रेंट कितना रखें? सो बेसिक थंब रूल यह है, रेंटल वैल्यू
1% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। मतलब अगर पकड़ के चलो कि आपकी अगर प्रॉपर्टी 200,000 की है, देन द रेंटल वैल्यू शुड बी अप्रोक्सीमेटली अराउंड $2,000। आपके घर में कुछ एडिशंस है, जैसे कि मेरे पुराने घर में एडिशंस ये थे कि वाटर सॉफ्टनर था और इनबिल्ट स्पीकर था मेरे बेसमेंट में, तो उसके लिए मैंने थोड़े डॉलर्स और चढ़ाए। ऐसे भी सोच सकते हो कि आप और थोड़े डॉलर चढ़ा सकते हो इफ योर हाउस इज इन स्कूल डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि स्कूल के लिए तो लोग मरते हैं। और एक टिप इधर यह है, आप दरअसल देख सकते हो गूगल में कि भाई ये मार्केट किसका है। मार्केट रेंटर वालों का है, मतलब जो लोग रेंट करना चाहते हैं या लोग ज्यादा बाय करना चाहते हैं, राइट। जैसे कि आज के जमाने में, आज मैं कर रहा हूं ये वीडियो, जमाने में दरअसल रेंट बहुत करते हैं लोग, मतलब प्रॉपर्टी के जो लोन रेट्स है थोड़ा महंगे है, राइट। सो पीपल वांट टू वेट, सो दे वांट टू रेंट, दैट टाइम यू कैन टेक दिस एडवांटेज। मतलब इधर आप और थोड़े डॉलर्स एक्स्ट्रा डाल के देख सकते हो। फाइनल टिप यह है कि आप जिलो में जाके कंपटीशन चेक कर सकते हो। गो टू zillow.com, search for zip code wherever your house is, select number of bedrooms and check the rental price, check the features what they are providing and come up with a price। तो मैंने ऐसे ही देखा, जिलो पे जाके मैंने कंपटीशन देखा और मुझे समझा कि भाई 2-3 घर छोड़ के एक बंदा रेंट कर रहा था, तो उसके सब मैंने फीचर्स देखे, अपने सब फीचर्स देखे, एग्जैक्टली सेम था। उसका भी अराउंड 1600 कुछ तो स्क्वायर फीट था, मेरा भी 1600 स्क्वायर फीट था। उसने कुछ तो एक XXX डॉलर्स रखे थे, तो मैं सोच रहा था कि भाई मैं क्या करूं। तो बाद में मैंने जब फीचर्स सब मतलब देखे तो मुझे पता चला कि भाई मेरे पास 2 ऐसे फीचर्स है वो उसके पास नहीं है, जैसे कि वाटर सॉफ्टनर और सेकेंड थिंग इज इनबिल्ट स्पीकर्स इन द बेसमेंट। तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं, लेट्स यूज दिस एंड लेट्स ट्राई टू मार्केट इट। तो इसलिए मैंने क्या किया, जो वो बंदे ने एक वैल्यू डाला था जिलो पे, मैंने भी सेम टू सेम वैल्यू डाला, बट आई प्रोवाइडेड 2 मोर एक्स्ट्रा फीचर्स। मतलब ऐसे मैंने लिखा ताकि लोग तो डेफिनेटली यार कंपेयर करेंगे ना कि मैं इधर क्यों जाऊं और उधर क्यों नहीं जाऊं। सो दे विल कंपेयर, अगर वो सीधे से कंपेयर करते हैं सो दे विल गेट टू नो कि भाई हाँ इधर वाटर सॉफ्टनर में मिल रहा है फॉर द सेम प्राइस, सो आई विल गो हियर। तो इसलिए मेरा घर उनसे पहले गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 2 फीचर्स, और दिस इज टोटली माई एजम्पशन। क्योंकि वाटर सॉफ्टनर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इधर का पानी बहुत हार्ड रहता है और अगर रेंटर रहेगा तो ही विल नॉट इन्वेस्ट इन वाटर सॉफ्टनर, क्योंकि उसको तो यार टेम्पररी ही रहना है इस घर में। नंबर 4, हाउ टू रेंट योर हाउस। बोलो किटी कैसे करते, स्टेप बाय स्टेप बोलो। गो टू zillow.com, सर्च फॉर योर हाउस, गो टू मैनेज रेंटल्स, एड योर प्रॉपर्टी डिटेल्स, क्रिएट लिस्टिंग। लिस्टिंग शुड बी वेरी कैची, मतलब आप जो लिखते हो दैट शुड बी वेरी 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 कैची। मैंने जो लिखा है मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाला है, आप जाके वो चेक कर सकते हो एंड यू कैन टेलर इट अकॉर्डिंगली। मतलब कॉपी पेस्ट मत करना। आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या टेस्टर हो तो आपको पता चलेगा कि भाई कॉपी पेस्ट से क्या क्या होता है। लाइक द वे मैं हमेशा सब लोगों को बोलता हूं कि इफ यू वांट टू डू अ बिजनेस यू हैव टू मेक देम हैप्पी एंड दे विल आल्सो मेक यू हैप्पी, एंड दैट्स हाउ द विन टू विन सिचुएशन इज। अभी आप मुझे बोलोगे कि केटी हाँ ठीक है, वी नो हाउ टू एडवर्टाइज आवर हाउस, टेल मी हाउ टू शॉर्टलिस्ट अ फैमिली, हाउ टू शॉर्टलिस्ट आवर टेनेंट्स। हियर यू गो। जब भी आप जिलो में वो एडवर्टाइज करोगे कि मेरा घर रेंट पे है, आप आ सकते हो, दे विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू थ्रू ईमेल और फोन नंबर। मेक श्योर दैट कि कभी भी आप फोन पे बात करते हो सब तुम्हारे जो कॉन्वर्सेशंस है एवरीथिंग इज बिन रिकॉर्डेड। आई ट्राई टू डू इट एवरीथिंग ऑन ईमेल, बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि यू हैव टू बी एक्टिव ऑन फोन। तो बहुत अच्छी एडवाइस है क्योंकि एवरीथिंग शुड बी रिकॉर्डेड, एवरीथिंग शुड बी रिकॉर्डेड। जब भी वो कॉल करेंगे ट्राई टू आस्क एज मेनी एज क्वेश्चंस एज पॉसिबल एंड अंडरस्टैंड वन थिंग। एक मिनट, दिस इज व्हाट वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी, हिज नेम इज दीपक मिश्रा, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट भी किया था, लिंक ऊपर रहेगा। उन्होंने एक्चुअली वो और उनकी वाइफ प्रीति ने मुझे एनकरेज किया था कि केटी एक काम कर, तू घर बेच मत, तू रेंट पे डाल, तू कुछ भी कर लेकिन रेंट पे डाल। उन्होंने मुझे एनकरेज किया था। उन्होंने ही मुझे बोला था कि भाई केटी एक अंडरस्टैंड वन थिंग, वन टिप दैट आई कैन गिव यू। आप भी ये सीधे तरह से सुनो, ठीक है। बियर यू आर द ओनर ऑफ दैट हाउस। यस, यू आर द ओनर ऑफ द हाउस। H1B ये सब छोड़ो। मैं बहुत डर रहा था कि भाई H1B है, नहीं ऐसे डरो मत। यू आर द ओनर ऑफ द हाउस। मुझे पता है आपको पता है, बट यू आर द ओनर ऑफ द हाउस। यू हैव राइट टू आस्क एनी क्वेश्चंस टू देम, एनी क्वेश्चंस, राइट। कभी आपको कोई पूछेगा नहीं। मुझे पता है कि इधर सब सू करते हैं, ये करते हैं, बट हियर यू आर द ओनर। दिस इज व्हाट दीपक टोल्ड मी। आस्क क्वेश्चंस,
आप अभी मुझे बोलोगे कि क्वेश्चंस क्या है, मैंने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप अगर वो देखना नहीं चाहते हो तो क्वेश्चन शुड बी लाइक दिस। जैसे आप पूछो हाय हेलो हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, हाँ ऐसा सब बोलते हो, उसके आंसर्स में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस। वो बोलेंगे इधर काम करता है, किधर काम करता है, ओके तो वो कुछ तो बोलेगा सैलरी की, ओ सैलरी, सैलरी कितनी है, सैलरी में और कुछ तो बोलेगा, ये सब। तो उसमें ही क्वेश्चंस ढूंढने की कोशिश करो, इतने क्वेश्चंस पूछो, इतने क्वेश्चंस पूछो, दे विल नॉट माइंड। Americans, they will not mind here, right? You have, because they want this house. उनको रेंटल प्रॉपर्टी में बहुत सारे इंटरेस्टेड रहता है, बहुत सारे लोग ना इधर रेंट करते हैं, दे डू नॉट ओन द हाउस, सो दे विल बी रेडी टू आंसर एनीथिंग। आप सिर्फ पूछना है। चलो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप और थोड़ा खेलते हैं। नंबर 1 इज ज़ीरो में यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, मतलब आप अगर रेंट कर रहे हो तो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। जो बंदा रेंट के लिए देख रहा है, दे हैव टू पे अराउंड $25 समथिंग टू ज़ीरो, सो दैट यू नो दे विल अप्लाई टू योर हाउस। इधर हाँ एप्लीकेशन भेजना पड़ता है लोगों को कि भाई मैं ये हूँ, मुझे तेरा घर चाहिए, इसलिए रीज़न, ये सब रीज़न तुम लोगों के पास ऐसे बड़ा सा एप्लीकेशन आएगा। जब वो सबमिट करेंगे तो वो जब सबमिट करेंगे तो ज़िलो क्या करता है, दे विल रन अ चेक अगेंस्ट देम, जैसे कि क्रेडिट कार्ड चेक, बैकग्राउंड चेक, मतलब बैकग्राउंड चेक में अगर वो क्रिमिनल ऑफेंस कुछ उसके रिलेटेड लॉज्ड है क्या, और अगर क्रेडिट कार्ड रिलेटेड कुछ तो उसके इश्यूज है क्या, जैसे कि बैंकरप्सी कुछ है क्या उसके नाम पे, ये सब रिपोर्ट ना ज़िलो लेके आपको ऐसे फेंकेगा, बोलेगा कि केटी देख इसका क्रेडिट चेक ऐसा है, इसका बैकग्राउंड चेक ऐसा है, अभी तू डिसाइड कर। इसमें मैंने तो डिसाइड किया, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा जस्ट फ्री में। और एक एडवाइस मैं ये देना चाहता हूँ कि बिना ये चेक करे, बिना ये सिक्योरिटी चेक, बिना ये बैकग्राउंड चेक देखे, बिना उसके एप्लीकेशन देखे, प्लीज़ डोंट इनवाइट एनीवन टू सी योर हाउस। ऑब्वियसली रेंट के लिए तो वो घर आके देखेंगे ना, जस्ट डोंट इनवाइट देम कि हाँ भाई आजा आजा घर देखने के लिए, ऐसा नहीं होता। बाद एक टाइम डिसाइड करो, एक दिन डिसाइड करो और उनको बोलो कि भाई ये टाइम ये दिन में तुम लोग आके घर देख सकते हो। तो जब वो आए, एंट्री किया, उनको घर दिखाया, एंड आई ट्राइड आस्किंग द सेम क्वेश्चंस अगेन, जो भी मैंने पूछा था ना, मुझे ये सब आंसर्स ना, ये सब मतलब रिकॉर्डेड रहते हैं, राइट। तो आई ट्राई टू मैच दोज आंसर्स विद दिस, क्योंकि ऐसे देखो आदमी कभी 2 बार झूठ नहीं बोलता, हाँ 2 बार उसको मतलब अनलेस कि उसके पास बहुत अच्छी मेमोरी है। तो इसलिए मैं आई वॉज ट्राइंग टू वैलिडेट उनके आंसर्स जस्ट टू मेक श्योर कि भाई ये बंदा लेजिट है कि नहीं। मैं और एक एडवाइस में आपको ये देता हूँ कि आप अकेले मत दिखाओ। आप अगर मैरिड हो तो ट्राई टू इन्वॉल्व योर वाइफ ऑल्सो। जब आपके साथ वाइफ रहेगी, शी विल ऑल्सो आस्क सम क्वेश्चंस विच यू हैव नॉट आस्क्ड, राइट। थोड़े ब्लाइंड स्पॉट्स आपके भी ओपन हो सकते हैं, राइट। आई नो हम लोग ज़्यादा से मतलब कोई तो एक ही देखता है, जैसे कि हस्बैंड या देखता है या वाइफ ही देखती है। ट्राई टू इन्वॉल्व, लाइक तुम लोग दोनों मिलके करो। ये जो वेंचर है तुम दोनों का है, किसी अकेले का नहीं। ऑब्वियसली इफ यू आर नॉट मैरिड देन यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। दैट टाइम यू कैन इन्वॉल्व योर फ्रेंड ऑल्सो। कोई अगर नजदीक वाला फ्रेंड है, ट्राई टू इन्वॉल्व योर फ्रेंड इन दैट। मतलब मेरा एक ही मानना है कि भाई कोई तो कुछ क्वेश्चंस रहना नहीं चाहिए। एंड गाइज नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, हाउ टू शॉर्टलिस्ट। तो हम लोगों ने क्या किया, मेरा बहुत पसंदीदा है ये, हाँ, टू फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। पेपर लिया, पेन लिया, सब एप्लीकेशंस के बारे में मैन्युअली पेन से मैंने लिखे, प्रॉस कॉन्स प्रॉस कॉन्स प्रॉस कॉन्स प्रॉस कॉन्स, हाँ ठीक है, सब एप्लीकेशंस हुआ। नुपुरा को बोला, नुपुरा आजा बैठ, ये इसका ये है, ये फैमिली का ये है, ये फैमिली का ये है, ये फैमिली का ये है। बोल क्या बोलती है, 1 सेकंड में उसने बोला कि इसको दे दे। क्यों? सब पेपर में है भाई, सब पेपर में है कि किसका अच्छा है। वो जो फर्स्ट फैमिली आई थी उनको ही हम लोगों ने सिलेक्ट किया। जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट उनका क्रेडिट चेक क्लीन, बैकग्राउंड चेक क्लीन, उनको लैंडलॉर्ड को मैंने कॉल किया, यस कॉल किया, सब लोगों ने अच्छा बोला। मतलब जो प्रीवियस लैंडलॉर्ड थे उनको भी कॉल किया, सब लोगों ने अच्छा बोला। उनके एचआर के साथ बात किया, एचआर के साथ बात किया, पे स्लिप देखे, यस। उनके जो टैक्स स्टेटमेंट्स है वो भी देखे, सब देखे, मतलब दे आर टोटली क्लीन। तो हम लोगों ने बिना कुछ देखे उनका एप्लीकेशन अप्रूव किया। यस है गाइस, एंड ऑब्वियस है गाइस, क्योंकि आप जब रेंट करते हो तो देयर आर लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन रेंटिंग। एंड टॉकिंग अबाउट रिस्क, लेट्स टॉक अबाउट रिस्क। क्या क्या रिस्क आ सकते हैं रेंट करने के बाद। नंबर 1 रिस्क दैट आई कैन थिंक इज कि इफ एनीथिंग हैपन्स इन द हाउस, राइट, जैसे कि हीटिंग इज नॉट वर्किंग, कूलिंग इज नॉट वर्किंग, और एनीथिंग इज नॉट वर्किंग, you'll have to make sure that you fix those things immediately. When I say you, that means some contractor has to go to the house and you have to fix it. Number 2 risk is ऐसा भी हो सकता है कि they will not pay you एक month का rent.
हो सकता है कि उनके घर में कुछ इश्यूज रहेंगे एंड दे विल टेल यू कि नहीं इस महीने का रेंट हम लोग नहीं भर सकते, हम लोग आगे भरेंगे, ऐसा भी हो सकता है। एंड नंबर 3 रिस्क इज दे मे डैमेज योर हाउस, मतलब वेयर एंड टेयर में कुछ ना कुछ तो हो सकता है। नंबर 7 इज लेट्स ट्राई टू सी हाउ वी कैन एलिमिनेट द रिस्क। तो नंबर 1, अगर घर में हीटिंग कूलिंग का कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैंने क्या किया है, एक कॉन्ट्रैक्टर को असाइन किया है, मतलब असाइन नहीं, मतलब वो पहचान का कॉन्ट्रैक्टर है। सो इफ एनीथिंग हैपेंस, इफ शी गिव्स मी अ कॉल, मतलब हमारी जो रेंटर, इफ शी गिव्स मी अ कॉल, आई विल आस्क द कॉन्ट्रैक्टर टू गो एंड फिक्स इट। और द गुड थिंग इज कॉन्ट्रैक्टर आजू बाजू रहता है, सो इमीडिएटली वो कभी भी जाता है, फिक्स करके आता है, देन आई पे हिम अकॉर्डिंगली। तो अगर वो एक महीने का रेंट पे नहीं करते फॉर सम रीजन, तो मैंने क्या किया है, मेरे घर के लिए, रेंटल प्रॉपर्टी के लिए एक काइंड ऑफ इमरजेंसी फंड किया है फॉर 3 months ऑफ रेंट, राइट। मतलब पकड़ के चलो, अगर 3 months तक रेंट नहीं मिलता तो आई हैव दैट इमरजेंसी फंड, आई विल यूज इट फॉर इट। और ये जो इमरजेंसी फंड है, आई यूज इट स्ट्रिक्टली फॉर द रेंटल पर्पस। मुझे अगर ये खरीदना है, वो खरीदना है, वो मैं हाथ नहीं लगाता। नंबर 3, वेयर एंड टेयर घर का हो जाएगा एंड देयर इज वेरी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट दिस रिस्क। भाई वही है कि वेयर एंड टेयर कुछ होता है तो यू हैव टू फिक्स इट बाय कॉलिंग सम कॉन्ट्रैक्टर एंड यू हैव टू पेंट इट, बिकॉज बिसाइड्स दैट आई डोंट थिंक कि देयर इज अ वे टू डू इट एंड इट्स काइंड ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क यार। तो होने की चांसेस भी है और नहीं होने के भी चांसेस है। ऑल्सो आई क्वार्टरली चेक इन विद देम, मतलब हर एक क्वार्टर एंड के बाद फर्स्ट डे ऑफ दैट मंथ आई ट्राई टू टॉक विद माई टेनेंट्स। टॉक मतलब मैं कॉल नहीं करता, जस्ट एक मैसेज डालता हूँ, टेक्स्ट मैसेज डालता हूँ या ईमेल डालता हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि इज एवरीथिंग ओके विद देम। एंड ऑल्सो वेन एवर आई गो टू इंडिया, राइट, दैट टाइम आई टेल माई टेनेंट कि भाई I am going to India, so the responses will be quite late. But in case अगर उनको कुछ emergency कुछ चाहिए तो उनको एक मैं contact number छोड़ता हूँ। मेरे एक friend है, I just request him every time I go to India कि भाई to take care of my tenant। अभी तक कॉल नहीं गया है but just in case। Also मैंने मेरे tenant को ये भी बोला है कि I should get the rent money on 3rd of every month। तो उसने उसके बैंक पे schedule किया है 3rd of every month and I am doing everything थ्रू जीरो फॉर जीरो फीस, इवन शी इज डूइंग फॉर जीरो फीस। तो उसने एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिया है टू पिक द मनी टू जिलो ऑन 3rd। तो वो मेरे अकाउंट में अराउंड 13th ऑफ एवरी मंथ आते हैं और 15th को मेरा मॉर्गेज चला जाता है और 16th को जो मेरे गेन्स है फ्रॉम दैट रेंट दैट गोज टू द इन्वेस्टमेंट। फ्लो इधर से आता है, उधर से इन्वेस्ट होता है, इधर से आता है, उधर से इन्वेस्ट होता है। एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, आई डोंट सी इट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं देखता नहीं ये सब। एवरी 6 months में मैंने गूगल कैलेंडर में सेट किया है, उधर जाके मैं देखता हूँ फ्लो बराबर से चल रहा है कि नहीं। ऑल्सो वन मोर थिंग, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड अबाउट माई हाउस, जैसे कि हाउ टू यूज माइक्रोवेव, हाउ टू यूज रेंज, हाउ टू यूज ड्रायर एंड वॉशर, हाउ टू यूज एनीथिंग, जो घर के सब जो भी कुछ है, जैसे कि हाउ टू यूज वाटर सॉफ्टनर, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जब भी मेरे जो टेनेंट आए थे फर्स्ट डे को, उनको मैंने ये सब डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किया था सो दैट दे डोंट कॉल मी और दे डोंट मैसेज मी ईच एंड एवरी टाइम, एवरीथिंग एकदम स्टेप बाय स्टेप। एंड ऑल्सो मैंने उनका ओरिएंटेशन भी किया था जब भी वो आए थे। तो मेरा एक बहुत बड़ा सा बास्केट जहाँ पे वेलकम किट था, जैसे कि फ्रेशनर हो, हैंड सैनिटाइजर हो, हैंड वॉश हो, नैपकिन हो, जो फर्स्ट डे के लिए उनको लगेगा, सब मैंने एक बास्केट में डाल के डेकोरेट करके एक आइलैंड पे रखा था ताकि भाई दे शुड फील हैप्पी अबाउट इट, right? And that's how it works, right? You make them happy, they'll make you happy, and this is pure business. Number 9, let's now talk about मुझे लीज अग्रीमेंट कहाँ से मिला। लीज एग्रीमेंट तुम लोग गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, जिस कोई सिटी में आप रहते हो उधर का डाउनलोड कर सकते हो। बट इसमें कैच ये है कि यू हैव टू सिट एंड रीड इट कंप्लीटली, यू कांट मिस अ सिंगल लाइन। यूएस में सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 month रेंट लेते हैं, बट आई टुक 2 months एंड दैट इज समथिंग यू कैन नेगोशिएट विद द टेनेंट एंड दिस इज समथिंग। और ये सब तुम लोग जिलो से ही कर सकते हो। तो यू कैन क्रिएट अ लीज ईयर, यू कैन अपलोड योर ओन लीज एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड इट विल सेंड देम फॉर द सिग्नेचर एंड दे विल आस्क यू ऑल्सो टू साइन। नंबर 10, लेट्स फाइंड आउट कि रेंटल इनकम का टैक्स कैसा होता है, हाउ मच वी नीड टू पे। लेट्स गो टू द स्क्रीन। तो रेंटल इनकम इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज टैक्सेबल इनकम।
इनकम फ्रॉम रेंटल प्रॉपर्टी इज टैक्स एज ऑर्डिनरी इनकम, ठीक है। इफ यू आर फाइलिंग जॉइंटली एंड हस्बैंड एंड वाइफ सैलरी इज अराउंड 300,000 पकड़ के चलो, देन यू फॉल अंडर ब्रैकेट ऑफ 24%। अब ये कैसे आता है, ये टैक्स के बारे में है, दैट इज समथिंग वी कैन डू इट इन सम अदर ब्लॉग, आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। तो अकॉर्डिंग टू IRS वेबसाइट ये लोग क्या बोलते हैं, यू कैन डिडक्ट एक्सपेंसेस लाइक मॉर्गेज इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी टैक्स, रिपेयर्स एंड डिप्रिशिएशन एक्सपेंस, ठीक है। तो पकड़ के चलो कि 24,000 का हम लोगों को साल का रेंट मिलता है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर्टी टैक्स अराउंड 6,000 जाता है, मॉर्गेज इंटरेस्ट अराउंड 5,000 जाएगा, इंश्योरेंस अराउंड 1,200 जाता है क्योंकि घर का इंश्योरेंस भी रहता है, रिपेयर पकड़ के चलो ऐसा नहीं आना नहीं चाहिए लेकिन आएगा तो आया करके समझो $1,000 का। डिप्रिशिएशन एक्सपेंस मतलब योर हाउस इज डिप्रिशिएटेड, लाइक वेयर एंड टेयर हो जाता है, ओल्ड होता है, पुराना होता है, राइट। तो देयर इज अ वे टू कैलकुलेट दैट ऑल्सो। तो चलो पकड़ के चलो कि हमारा घर 200-200,000 का है, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग लाइक क्लोजिंग, बट लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं, डिप्रिशिएटेड एक्सपेंसेस सिर्फ घर का निकालते हैं, लैंड का नहीं। अकॉर्डिंग टू देम लैंड विल नॉट गो एंड इट इज कंसिडर्ड एज इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ। मतलब 200,000 में 20,000 माइनस करते हो तो 180,000 बचते हैं। तो रेसिडेंशियल रेंटल प्रॉपर्टीज डिप्रिशिएटेड ओवर 27.5 ईयर्स, ये यूजफुल लाइफ नंबर दिया जाता है। तो 180,000 से ये डिवाइड किया जाता है, दैट इज इक्वल टू 6545। तो चलो डिप्रिशिएशन एक्सपेंस हमारा ऐड हुआ 6545। तो ये अगर 24,000 से सब माइनस करते हो तो बचते हैं 4255। एंड सिंस मैंने बोला कि 24% हम लोग टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, जैसे कि अगर हस्बैंड वाइफ का सैलरी 300,000 है तो 24% ऑफ 4255 इज 1021, उतना टैक्स हम लोग ओ करते हैं। I hope कि you understood how to rent your house using Zillow, using zero fees. I hope you understand the risk involved in renting your house. Hope कि you understood how to flow the money, जो बीच बीच पे मैंने बोला था। I hope कि आपका भी हाउस बने, आप भी रेंट करो, आप भी पैसे कमाओ। Thanks for watching this vlog. Enjoy!